today on Study with Pratik, we are going to start class 12th NCERT CBSE course Geography. Alright, so in class 11th you have studied about the fundamentals of physical geography. Okay, you have studied about the physical environment of India. Okay, now in class 12th we will be going to study about a new concept of geography that is called human geography. Okay, what is human geography actually is you have two textbooks. Alright, you have three textbooks. One is for practical work. Okay, the first textbook is Fundamentals of Human Geography. The second textbook is India, People and Economy. Alright, so in that India, People and Economy textbook, we are going to study about the human geography and the population distribution of India and other aspects, okay, which will be on context of India. And in the human geography chapter, you will be studying about human geography textbook. You will be studying about the concepts of human geography, what actually it is. You will be studying about the other fields of human geography. You will be studying about the subfields, some other points which will be related to the main point, that is human geography. So alright, the first chapter of our first textbook of class 12, that is human geography, fundamentals of human geography. So what is the definition of human geography? What actually it says? Okay, उसमें क्या है, उसके अंदर क्या है, human geography के fields and सब fields पढ़ने की हम कोशिश करेंगे. उसके अंदर क्या क्या आता है, ये फर्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे. चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप. ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, उसका नेचर क्या है और उसमें स्कोप क्या क्या है इस फील्ड में. ज्योग्राफी इज अ वास्ट सब्जेक्ट और उसमें इतने सारे फील्ड्स है, वो सारे हैं. हमने कुछ जो फिजिकल ज्योग्राफी के फील्ड्स थे और सब फील्ड्स से हमने 11th में डिस्कस किए. ऑलराइट, और कुछ जो है वो हम 12th में डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 12. आई होप यू विल लाइक इट. If you like it, please make sure you comment on it, you like it, okay, you subscribe to my channel and you share it with your friends. Alright, so let's start. Let's not waste the time and proceed with the chapter. Okay, the chapter is human geography. So what actually is human geography is? Okay, so we'll discuss the definition of human geography. Human geography studies the relationship between the physical and natural. The physical and natural both are same. Okay, physical को बोलो या फिर natural बोलो, both are same. एंड द ह्यूमन वर्ल्ड्स. ओके, यहाँ पे तीन चीजें आती है. पहला जो है रिलेशनशिप, किसके बीच का रिलेशनशिप, फिजिकल और ह्यूमन वर्ल्ड का. ओके, नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड का. नेक्स्ट थिंग इज द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड्स. ओके, ह्यूमन वर्ल्ड के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. और थर्ड फाइनल पॉइंट है हाउ दे कम अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग पार्ट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह से जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस है लोगों के बीच में, उस तरह से हम किस तरह से वी कैन कम अबाउट, उसके बारे में हम ह्यूमन ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी. नाउ द ह्यूमन ज्योग्राफी emphasis more on study of nature and the human beings. Okay, नेचर की स्टडी और ह्यूमन की स्टडी को इंटरलिंक करके ह्यूमन ज्योग्राफी बनता है. ऑलराइट, ज्योग्राफी इटसेल्फ इज अ स्टडी ऑफ नेचर and if we put human in it, okay, we are studying the geography of human, the nature of human. Okay, the how the humans are adapting with the nature. We will be studying all about this in the whole textbook. Alright, not in this chapter but the further coming chapters also which I will be posting very soon and very quickly. Alright, now ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन. ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में, भूगोल, ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं हिंदी में, भूगोल. तो भूगोल एक विषय के रूप में कैसा है. ऑलराइट, तो जैसे हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. जैसे हम मैथ्स का एग्जांपल ले, सो वी डिवाइड मैथ्स इनटू यू नो द अरिथमेटिक, द ज्योमेट्री, ऑलराइट, ऑल दिस अलजेब्रा, ये सब में हम डिवाइड करते हैं मैथमेटिक्स को. वैसे ही ज्योग्राफी भी डिवाइड होता है. ओके, उसके फील्ड्स एंड सब फील्ड्स होते हैं, उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं. एट द सेम टाइम ज्योग्राफी दो तरह की है. पहली है लॉ मेकिंग, जिसको आप थियराइजिंग भी कह सकते हो, जो पूरी थियरी बेस्ड है. और दूसरी है डिस्क्रिप्टिव. ओके, यू हैव द थर्ड टेक्स्ट बुक इन योर क्लास 12 ज्योग्राफी, दैट इज प्रैक्टिकल्स इन the class 12 geography. Okay, so that comes under this descriptive, the ideographic, okay, the ideographic. Alright, and the first one is the nomothetic. Nomothetic means जितना भी theory based geography है, alright, वो सब लॉ मेकिंग में आएगा, थियराइजिंग में आएंगे, जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को प्रूव किस में करेंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ज्योग्राफी में. ओके, या तो फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रीजनल या फिर सिस्टमैटिक, रीजनल ज्योग्राफी एंड सिस्टमैटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी. Okay, we discuss this now.
डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी गिवन बाय स्कॉलर्स। तो वर्ल्ड में अलग अलग स्कॉलर्स होते हैं ऑफ कोर्स हर एक सब्जेक्ट के, वैसे ही ज्योग्राफी के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने लैंग्वेज में ज्योग्राफी को, ह्यूमन ज्योग्राफी को किस तरह से डिफाइन किया है। ऑलराइट, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। रैटजल, ओके, so Ratzel was one of the scholars of human geography, or you can say the field of geography. So what did he define? How did he define this human geography? Okay, he told that human geography is a systematic study of what? Of relationship between the human societies and the earth's surface, which we have discussed over here also. Alright, the second definition which was given by Allen C. Sample, and he discussed about the dynamism in this relationship between the humans and the nature. Alright, what did he say? That human geography is the study of changing relationship between the unresting man and the unstable earth. Okay, the earth is unstable, the man is also unresting. Okay, both are working, both are in progress, both are in motion. Alright, and these relationship, alright, this changing relationship between the unresting man and the unstable earth is the study, and its study is called the human geography. It is stated by Alan C. Sample. Now, this is the third definition which is given by one of the scholar. Okay, the name is not given, but of course it's a definition which is given by a scholar. क्या बताता है ये कि conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it. Okay, क्या बोलता है कि वो सारे ही concepts, okay, वो सारे ही concept जो synthetic knowledge हमारा खुद का और physical laws जो होते हैं, nature के जो physical laws है, governing our earth जो हमारे earth को चला रहे हैं, okay, and of the relations between the living beings. Okay, तो जो laws earth को चलाते हैं, जो natural laws, okay, जो अर्थ को चला रहे हैं, जो अर्थ को गवर्न कर रहे हैं, और साथ में लिविंग बीइंग्स जो यहाँ पे रहते हैं, इनहेबिट है, अर्थ में रहते हैं, उनके बीच का जो सिंथेटिक नॉलेज है, उनके बीच का जो कंसेप्शन है, ओके, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी. और ह्यूमन ज्योग्राफी एट लार्ज ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन, एक नया कंसेप्शन ऑफर करता है ऑफ द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग्स. ओके, तो अर्थ और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, उसके बीच में एक न्यू कंसेप्शन ह्यूमन ज्योग्राफी हमें प्रोवाइड करता है. राइट, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी. द चैप्टर इटसेल्फ सेज नेचर एंड स्कोप. ओके, स्कोप हम देखेंगे, अभी हम नेचर देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या क्या नेचर है. ओके, तो सबसे पहले क्या है ये चीज, दैट फिजिकल एनवायरनमेंट हैज ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड इट हैज आल्सो इंपैक्टेड ह्यूमन बीइंग्स. ओके, तो करंट सिनेरियो ही ले लो आप, है ना. बिकॉज ऑफ द ह्यूमन डीड्स we are facing all these natural calamities and the natural disasters and all kind of the epidemics and the pandemics. All right, you know very well the example of COVID-19. Okay, it is all spreading because of the increasing populations and the the negative and the bad deeds of people, the human beings. All right, so because the human beings are trying to modify the nature. All right, the nature is also modifying itself. All right, the nature is, you can say, it is taking revenge. All right, लेकिन ऐसे ज्योग्राफी की भाषा में आप ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी फिजिकल एनवायरनमेंट हैज ग्रेटली मॉडिफाइड. फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत ही पहले जैसा था ऐसा अभी एनवायरनमेंट अभी नहीं रहा है. ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही नेचर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं. ओके, हमें कभी कभी हमें बहुत गर्मी लगती है, देन वी स्टार्ट एसी. ऑलराइट, द एसी विल एमिट द गैसेस, है ना, द हार्मफुल गैसेस, एंड इट विल इम्पैक्ट अस ओनली. ओके, एक टाइम के बाद वो फिर हमें ही नुकसान पहुंचाता है, बट एट द सेम टाइम इट इज हार्मिंग अवर इन्वायरमेंट, अवर नेचर ऑल्सो. ऑलराइट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि हम जो नेचुरल लॉज है उनको समझे. ऑलराइट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन और हीट और फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट जब हमने समझा, तब हमने फायर डिस्कवर किया. तब हमने क्या डिस्कवर की? फायर डिस्कवर की. उससे पहले हमें पता नहीं था कि फायर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है. ऑलराइट, नाउ knowledge about nature is extremely important to develop technology, and technology loosens the shackles of environment of human beings. Okay, तो क्योंकि हम नेचर को स्टडी कर पा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी को और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं. क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हम नेचर को और ज्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं, और उससे इन्वायरमेंट की जो पावर्स है वो हम छीन रहे हैं. ऑलराइट, ऐसा कुछ आप कह सकते हो. नाउ देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस. द फर्स्ट वन इज द environmental determinism, and the second one is possibilism. Alright,
तो ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं. So the interaction between primitive human society and strong forces of nature in which human adapt himself either to dictates of nature because of low level of technology is called environmental determinism. This is the definition of it. Okay, जो primitive human society है और दूसरा strong forces of nature. Okay, तो जो strong forces of nature है उससे हमने जो primitive human society थी उसने adapt कर लिया. Okay, और himself to the dictates of nature because of the low level of technology. तो पहले क्या हुआ करता था, जो पहले के जो ओल्ड जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ऑलराइट, पहले के जो लोग थे उन लोगों के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऑलराइट, उतनी मॉडर्न साइंस तब डेवलप नहीं हुई थी कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो इतने डेवलप हो जाए कि वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करे अपने हिसाब से. तब एसी नहीं था, तब रेफ्रिजरेटर नहीं था, ऑलराइट, ओके, ऑल दिस हीटर वाज नॉट देयर, सो ऑल दिस इक्विपमेंट्स वर नॉट देयर which they can adapt to, okay, जो उनके लिए ज्यादा कंफर्ट फील करवाए. ओके, लेकिन here naturalized human, तब के ह्यूमन कैसे थे? नेचुरलाइज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरलाइज? कि वो नेचर से अडेप्ट हुए थे, ऑलराइट. जब गर्मी है तो वो गर्मी भी सहन कर रहे, जब ठंडी है वो ठंडी सहन कर रहे, बारिश है तो वो बारिश भी सहन कर रहे. बट नाउ डेज व्हाट वी आर डूइंग, ओके, वी नीड आवर कंफर्ट. ओके, हम जैसा चाहे वैसे हम खुद को मॉडिफाई कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑलराइट. is always afraid of its fury and worships it. Okay, its fury, its मतलब कि नेचर का जो फ्यूरी है, नेचर का जो डर है, और नेचर के डर के कारण वो नेचर को वर्शिप करते थे, नेचर को पूजते थे. कौन? प्रिमिटिव जो ह्यूमन लोग थे, पहले के जो लोग थे. एंड दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. ओके, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. Now the second one is the possibilism. Possibilism मॉडर्न एज में, अभी के जमाने में हो रहा है. क्या है? The development of technology, society and culture by understanding nature of humans and its modification by artificially by human efforts is called possibilism. तो ये possibilism की डेफिनेशन हुई, बहुत अच्छी तरह डेफिनेशन में बताया गया है कि अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम नेचर को मॉडिफाई करें. क्योंकि हम नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम क्या हो गए हैं? नेचर गेट्स ह्यूमनाइज, नेचर ह्यूमनाइज हो गया है, और यहाँ पे इंसान ह्यूमन नेचुरलाइज्ड हुआ था. तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखना है. नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, ओके, एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस, ओके, एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड. ओके, जिस तरह से नेचर को हम छोटा मानते रह रहे हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते करते हमारे इन्वायरमेंट को हमारी तरह मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसमें हम खुद को कंफर्ट फील करा सके, ज्यादा सुकून फील करवा सके. ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड द पॉसिबिलिज्म व्हिच कम्स अंडर द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज नियोडिटर्मिनिज्म, सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो नियोडिटर्मिनिज्म, जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है. ओके, अब ये स्टॉप और गो से आपको कुछ रिलेशन मिलता है क्या? आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स को, ऑलराइट. तो ट्रैफिक सिग्नल्स में 3 लाइट्स होती है, रेड, येलो एंड green. Okay, so when it is red in the traffic signal we stop, when it is yellow we start the engine, and when it is green we move. Okay, the same is the concept of neo-determinism in the concept of human geography. है क्या? neo-determinism या फिर stop and go determinism. हमने ऑलरेडी environmental determinism पढ़ लिया, जिसमें environment के forces ज्यादा पावरफुल होते हैं ह्यूमन से, और possibilism में ह्यूमंस थोड़े से ज्यादा पावरफुल होते हैं अपने टेक्नोलॉजी के कारण नेचर से. ऑलराइट, अभी ये क्या है? यहाँ आप देख रहे होंगे एक ज्योग्राफर है ग्रिफिथ टेलर नाम का, मतलब थे. तो ग्रिफिथ टेलर ने ये नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट हमें दिया. ओके, तो ये है क्या? मतलब ज्योग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने नियो डिटर्मिनिज्म क्या है एक्चुअली? सो इट इज अ मिडल पाथ बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. तो ये दो जो पाथ है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, तो उन दोनों के बीच का रास्ता, ओके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्यम मार्ग. क्या बोलते हैं? मध्यम मार्ग. तो नियो डिटर्मिनिज्म इज अ मिडिल पाथ बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. किस तरह से ये कॉन्सेप्ट है क्या? नियो डिटर्मिनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है? ओके, नीदर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, ओके, जिसको आप एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हो जब एकदम नेसेसिटी आ जाती है, नॉर अ कंडीशन ऑफ फ्रीडम. ओके, ना ह्यूमंस को फ्रीडम मिली है, पॉसिबिलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, तो ना इसमें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ज्यादा है, ना पॉसिबिलिज्म ज्यादा है, दोनों ही इक्वल अमाउंट में होता है.
Now what is the meaning of this neither or are or wala? Okay, nor wala. See, meaning is that human beings can conquer the nature by obeying it. Okay, नेचर को ओबे करके, नेचर को रिस्पेक्ट देकर, नेचर को प्यार से उसका जितना भी कंजम्पशन हम कर सकते हैं वो कंजम्पशन करके हम नेचर को कंक्यूर करें, नेचर के साथ साथ चले. ओके, द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो है उसको फॉलो करते करते, हम नेचर को ओबे करते करते हम नियो डिटर्मिनिज्म जो मध्यम मार्ग है उसको फॉलो करें. ओके, रिजल्ट्स ऑफ द मॉडिफिकेशंस मेड बाय द डेवलप्ड इकोनॉमीज और कंट्रीज. ओके, तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उसने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किए, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स अपनाई. ऑलराइट, और उसमें नेचर का बहुत ही डिप्लीशन हुआ, नेचर का बहुत ही डिग्रेडेशन हुआ. तो व्हाट वर द रिजल्ट्स, उसके कारण क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए. ओके, तो द फर्स्ट वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, डेवलपमेंटल वर्क हुआ, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला, टेक्नोलॉजी और बढ़ी, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी बड़ी बड़ी और खतरनाक चीजें उत्पन्न हुई. ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन शुरू हो गया, ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, रिसीडिंग ग्लेशियर्स पिघलने लगे और लैंड्स डिग्रेड होने लगी, द पोल्यूशन एंड ऑल दैट एस्पेक्ट्स. ओके, दैट इज all led to the development of these economies and the developed countries. ओके, अब हम नियो डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं वापस. तो नियो डिटर्मिनिज्म conceptually attempts to bring a balance, nullifying the either or are dichotomy. What is dichotomy? डाइकोटोमी को आप हिंदी में कह सकते हो द्वैतवाद. क्या कह सकते हो? द्वैतवाद. ओके, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है डाइकोटोमी. डाइकोटोमी इज टोटली if there are, for example, there are two ideas और उन दो आइडियाज के बीच में एक टोटली डिफरेंट व्यू को डाइकोटोमी कहते हैं. ऑलराइट, तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एकदम अलग व्यू है और पॉसिबिलिज्म भी एकदम अलग व्यू है, और इन दोनों के बीच में एक क्या बता रहे हैं वहां पे एक वो लोग सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज ऑल अबाउट नियो डिटर्मिनिज्म. यहाँ पे जो ईदर और की जो डाइकोटोमी है, ईदर और के जो आइडियाज है वो एकदम वहां पे पूरे हो जाते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं. वहां पे कोई ऐसा इधर और का मतलब आता नहीं है. वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस. ऑलराइट, नाउ so this was all about the possibilism, environmental determinism and neo-determinism. Now human geography through the corridors of time. Okay, समय के अनुसार जो ह्यूमन ज्योग्राफी हो किस तरह से डेवलप हुई. Okay, किस तरह से उसके स्कूल ऑफ थॉट्स आए. तो मेनली there are mainly three hypotheses. Okay, humanistic school of law, radical school of thought and behavioral school of thought. Okay, तो तीन स्कूल ऑफ थॉट इस तरह से आए, ह्यूमनिस्टिक, रैडिकल एंड बिहेवियरल. अब ये तीनों के बारे में हम deeply discuss करेंगे. Alright, so these three were the main points in the hypothesis of the three corridors, through the corridors of time, human geography को पढ़ना और यहाँ नियो डिटर्मिनिज्म. अब हम बात करेंगे उन तीन टॉपिक्स में. ओके, उन तीन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज वेलफेयर या फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, सेकेंड वन इज रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड थर्ड वन इज बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट. तो सबसे पहले वेलफेयर. वेलफेयर से आपको टर्म से ही पता चल रहा है, वेलफेयर मतलब सोसाइटी का कुछ वेलबीइंग करने के लिए. ओके, ह्यूमंस के लिए कुछ वेलबीइंग करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए. सो मेनली इट इज कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबीइंग ऑफ पीपल. ओके, पीपल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं सोशल वेलबीइंग के, ओके, सामाजिक उद्धार के लिए जो काम होते हैं उसका काम करना, ये वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक या वेलफेयर कह दो या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में कह दो, इसमें आता है. तो एस्पेक्ट्स कौन से है? एस्पेक्ट्स हो सकते हैं हाउसिंग, हो सकता है हेल्थ या फिर एजुकेशन. आप हेल्थ दे दो, एजुकेशन दे दो या फिर कोई हाउसिंग का काम दे दो. ओके, मतलब उनको घर दे दो. ओके, उनको हेल्थ फैसिलिटीज दे दो. ओके, उनको एजुकेशन दे दो, अच्छी शिक्षा दे दो. तो फिर दैट विल कम अंडर द वेलफेयर और द ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट. नाउ द सेकेंड वन, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट. नाउ व्हाट इज दिस रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट? रेडिकल वर्ड से पता चल रहा है समथिंग उग्र. ओके, कुछ उग्रवादी टाइप का. तो एम्प्लॉयड मार्क्सियन थियरी, मार्क्सियन वही हमारे कार्ल मार्क्स साहब. ओके, तो एम्प्लॉयड मार्क्सियन थियरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिविएशन एंड सोशल इनइक्वालिटी. तीन चीजें, सोशल इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है और डेप्रिविएशन है. इन तीन चीजों की बेसिक कॉज किससे पता लगाया गया? मार्क्सियन थियरी से. मार्क्सियन थियरी किस पर बेस्ड है? पूरी कैपिटलिज्म पे, पूंजीवाद. ऑलराइट, कंटेम्पररी सोशल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म. तो जिस तरह से कैपिटलिज्म बढ़ता गया वैसे ही कंटेम्पररी जो प्रॉब्लम्स थे ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की टू बी स्पेसिफिक, ओके, वो सारी
बढ़ती चली गई. नाउ बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट. व्हाट इज दिस बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट? वर्ड से क्या पता चल रहा है? ओके, इट लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन lived experiences and also on the perception of space by social categories based on ethnicity. ethnicity को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ethnicity में हम बोलते हैं मानव जातीयता. ओके, जो कास्ट बेस्ड जो डिफरेंसेस है. ओके, रेस एंड देन रिलीजन. इन तीन चार चीजों में बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट को डिवाइड किया गया है, अलग किया गया है ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड में. सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्री पिलर्स, और यू कैन से द थ्री school of thoughts on the corridors of time, okay, for the human geography. So now let's discuss about the broad stages and the thrust of human geography. Till now we have discussed about the three main hypotheses. We have discussed about the human geography through the corridors of time, जिसमें हमने तीन main school of thoughts हमने देखी थी. ओके, हमने देख लिया कि नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, वो तीन जो कॉन्सेप्ट्स है, पॉसिबिलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट. नाउ लेट्स डिस्कस द न्यू टॉपिक, दैट इज ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी के क्या क्या स्टेजेस थे? ओके, कौन से समय पर ह्यूमन ज्योग्राफी किस किस तरह से काम में आया, उपयोग में लिया गया ह्यूमन ज्योग्राफी को, उसका हम डिस्कशन करेंगे. सबसे पहला उसमें है पीरियड वाइज वी विल डिवाइड द ह्यूमन ज्योग्राफी. ऑफ कोर्स इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेजेस, नो, सो हम डिवाइडेड इनटू पीरियड्स. द फर्स्ट पीरियड वाज अर्ली कॉलोनियल पीरियड. कॉलोनियल उपनिवेशवाद, जब उपनिवेश भारत में आया, जब ब्रिटिश शासन भारत में आया, तब का अर्ली एरिया, मतलब तब का अर्ली टाइम, सॉरी, ओके, उस अर्ली टाइम पे किस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी को यूज में लिया गया. ऑलराइट, तो पीरियड था अर्ली कॉलोनियल पीरियड का. अप्रोच, तब का अप्रोच, तब किस पर अप्रोच किया गया था? एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन पर. एक्सप्लोरेट करेंगे, सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन निकाल के लिखेंगे, मतलब समवेयर दे विल राइट इट आउट देयर. ओके, तो फ्री फीचर्स में फर्स्ट है इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट prompted the discovery and exploration of new areas. नए एरियाज का डिस्कवरी किया, ओके, उसका एक्सप्लोर किया नए एरियाज को. ओके, किसके इंटरेस्ट के लिए? इंपीरियल एंड ट्रेड के. इंपीरियल मतलब शासन और ट्रेड व्यापार. ओके, सेकेंड पॉइंट, एनसाइक्लोपेडिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफर्स अकाउंट. ओके, एकदम एनसाइक्लोपेडिक डिस्क्रिप्शन निकाला गया, जिससे जो ज्योग्राफर लोग जो अपने अकाउंट्स लिखते थे, ज्योग्राफर्स जो अपना सारा वो डेटा संभाल के रखते थे अपने पास, उन्होंने लिखा, जितना भी उन्होंने प्रोक्यूर किया, वो सब ज्योग्राफर अकाउंट में आया. क्या? एनसाइक्लोपेडिक डिस्क्रिप्शन, उस टाइम के एक्सप्लोर और डिस्क्रिप्शन बेसिस पे ह्यूमन ज्योग्राफी को कलेक्ट करने के लिए. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पीरियड जब आया वो था लेटर कॉलोनियल पीरियड का, जब कॉलोनियल पीरियड एकदम आखिर में. ओके, रीजनल एनालिसिस, तब हुआ रीजनल एनालिसिस. व्हाट इज रीजनल एनालिसिस? अंडरटेकिंग ऑफ ऑल रीजन्स एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन. हर एक इलाके का एकदम डीप डिस्क्रिप्शन लेना ही रीजनल एनालिसिस कहलाता है. हर एक रीजन का एनालिसिस करना. राइट, कितना सॉइल क्या है, लोग, वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है, ओके, वहाँ का टोपोग्राफी, एवरीथिंग कम्स अंडर द रीजनल एनालिसिस व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द लेटर कॉलोनियल पीरियड. ऑलराइट, और दूसरी चीज तब हुई, तब एक आइडिया प्रचलित था उस समय कि ऑल रीजन्स वर पार्ट ऑफ अ होल. ओके, सब लोग मानते थे कि सभी रीजन, जो सारा रीजन है, पूरा जितने भी हमारे पास एरिया है, वो पूरा एक ही है, मतलब एक ही हिस्से का पार्ट है, एक ही हिस्से का पार्ट है. व्हाट इज दैट हिस्सा? दैट इज अर्थ. ओके, द अर्थ. Regions were a part of a whole and that whole is earth. So understanding the parts in totality would lead to an understanding of the whole. तो पूरे ही सारे ही रीजन्स का आप अगर डिस्क्रिप्शन ले रहे हो, सारे ही रीजन का आप एरिया का आप डेटा ले रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो आपके पूरे ही अर्थ की आपको नॉलेज आ जाएगी. ऑलराइट, द थर्ड पीरियड वाज फ्रॉम 1930s, जब इंटर वॉर पीरियड चल रहा था, 1930s थ्रू इंटर वॉर पीरियड. ओके, तब एरियल डिफरेंशिएशन हुआ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था वैसे तो, लेकिन ज्यादा इसके बारे में हम जानते नहीं हैं. ओके, इसके ब्रॉड फीचर्स क्या थे एरियल डिफरेंशिएशन के? कि द फोकस वाज ऑन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ओके, अगर दो, फॉर एग्जांपल देयर इज अ रीजन कॉल्ड ए एंड देयर इज अ रीजन कॉल्ड बी. ओके, तो उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है?
वो एरियल डिफरेंशिएशन के अंदर निकाले गए कि भाई इसमें इतने लोग रहते हैं, उनका इथनिसिटी ये है, उनकी रेस, रिलीजन. ऑलराइट, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, वी आल्सो टॉक अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी इन दिस. ओके, so these was all about the three parts. Now we'll also discuss the three another stages. So now अब हम बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ स्टेज की. फोर्थ स्टेज में क्या है? ब्रॉड स्टेजेस ऑफ थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं. उसमें हम अब 1950s की बात करेंगे और 1960s की लेटर पीरियड की. ओके, 1950s के आखिर के सालों में और 1960s के आखिर के सालों में जो पीरियड 4 आया था. अप्रोचेस कौन सा है? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन उस समय किया गया था. What are the broad features? Marked by the use of computers and sophisticated statistical tools. Okay, कंप्यूटर का यूज शुरू हुआ और sophisticated statistical tools का उपयोग इस समय शुरू हुआ. 1950s से कंप्यूटर का टाइम आने लगा था. Alright, then laws of physics were often applied to map and analyze human phenomena. तो ह्यूमन फेनोमेना को एनालाइज करने के लिए, उसका डेटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए फिजिक्स के लॉज को लागू किए गए, जिससे और अच्छी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी का पता लगाया जा सके. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन. ओके, दिस फेज इज कॉल्ड. ओके, ये लेट 1950s से लेट 1960s का जो टाइम है उसको क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है. ऑलराइट, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न्स फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज. अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए जो है मैपेबल पैटर्न्स बनाए जाए, जिससे पता चले कि भाई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एरिया का कैसा है, किसी भी एरिया का, रीजन का कैसा है. नाउ पीरियड 5. ओके, सेकेंड लास्ट पीरियड ह्यूमन ज्योग्राफी का इंटरप्रिटेशन का 1970s के दौरान. ओके, 1970s तक हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी और मोस्टली जो कॉलोनियलिज्म है वो कम होने लगा था. ओके, इमर्जेंस ऑफ 3 स्कूल्स ऑफ थॉट, हमने जो 3 स्कूल्स ऑफ थॉट पहले डिस्कस कर लिए हैं, उसका इमर्जेंस हुआ, धीरे धीरे वो आए. ऑलराइट, ह्यूमनिस्टिक, जिसको वेलफेयर भी बोलते हैं, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट. ओके, जो हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. व्हाट आर द ब्रॉड फीचर्स ऑफ दिस इमर्जेंस ऑफ 3 स्कूल ऑफ थॉट्स? ओके, ड्यू टू डिसकंटेंट विद द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन. ये क्या है? क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है क्योंकि उससे डिसकंटेंट लोगों को हुआ. क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द dehumanized manner, dehumanized nature of this quantitative revolution. What is quantitative revolution exactly is? Okay, तब बहुत ही प्रमाण में, बहुत ज्यादा प्रमाण में एग्रीकल्चरल वर्क किया गया, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, बहुत ही हमने अर्थ को डिग्रेड किया. ओके, अर्थ के जो नेचुरल हमारे पास रिसोर्सेज थे उसको हमने बहुत ही अननोइंगली, बहुत हार्शली हमने उसको यूज किया. बिकॉज ऑफ दैट dehumanized manner of doing geography, the emergence of these 3 school of thought, उसका इमर्जेंस हुआ. ऑलराइट, ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेड मोर रिलेवेंट टू सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी बाय इमर्जेंस ऑफ दीज स्कूल्स ऑफ थॉट. और जो सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी थी उसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस इस टाइम पे बढ़ने लगा. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पीरियड 4 एंड पीरियड 5 ऑफ दिस ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट. नाउ वी विल डिस्कस द 6th एंड द फाइनल स्टेज और थ्रस्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी. ओके, तो फर्स्ट उसमें जो 6th जो पार्ट था वो 1990s को शुरू हुआ और इसको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म इन जियोग्राफी. तो आप जैसे आपको पता होगा, हर एक सब्जेक्ट का एक मॉडर्नाइजेशन होता है जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, नई नई रिफॉर्म्स होते हैं. ठीक है, तो उसी समय पे 1990s पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, उसका खुद का मॉडर्निज्म हुआ था. तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे ज्योग्राफी के, कि ज्योग्राफी का आखिर का जो टाइम था जब ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी को इंटरप्रेट करके उसको पेपर्स में हमें शो करना था, तब मॉडर्निज्म के टाइम पे उसके क्या क्या फीचर्स थे. ये लास्ट स्टेज था ह्यूमन ज्योग्राफी के थ्रस्ट और स्टेजेस का, ऑफ कोर्स. तो ब्रॉड फीचर में फर्स्ट है ग्रैंड जनरलाइजेशन and the acceptability of universal theories to explain the human conditions were questioned. किसको क्वेश्चन किया गया? एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थियरीज को और जनरलाइजेशंस, ग्रैंड जनरलाइजेशन, बड़े बड़े जनरलाइजेशंस किए गए. ओके, हर एक बातों को जनरलाइज किया गया. एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थियरीज, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स, कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स, उन लोगों को यूनिवर्सलाइज किया गया. कुछ चीजें मतलब सपोज फॉर एग्जांपल लेट इट टेक इट वेरी इजी, आवर अर्थ revolves around the sun, it rotates in its own axis, imaginary line axis. So that is a universal theory, that is a universal truth. तो उसको जनरलाइज कर दिया गया. तो हर एक जगह पे वो ज्योग्राफी का वो जो टर्म है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो हर एक जगह
क्लियर होगा, हर एक जगह वही चीज पढ़ाई जाएगी. ओके. सेकेंड, द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कंटेक्स्ट इन इट्स ओन राइट वॉज एम्फेसाइज्ड. इन इट्स ओन राइट कि कुछ लोकल कंटेक्स्ट है उसको अपने तरीके से समझना, उसको इंपॉर्टेंस दी गई उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये यूनिवर्सल थियरीज वाला. तो दिस वाज द लास्ट stage or thrust of human geography. Okay, now we will discuss the fields and the subfields of human geography. So now we will discuss about the fields and subfields of geography, and then we will be discussing the sister disciplines of the social sciences, or you can say the geography subject. Okay, so जैसे आप जानते हो कि हर एक सब्जेक्ट में खुद के उसके सब फील्ड्स होते हैं, उसके सब सब्जेक्ट्स होते हैं. ऑलराइट, we have another like subject criterions also, like in mathematics what we have algebra, we have mensuration, we have geometry, like that. In English we have linguistics. Okay, we have grammar, we have literature, language. Then हर एक लैंग्वेज को उस तरह से डिवाइड किया जाता है. वैसे ही लैंग्वेज ले लो, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो, ऐसे ही यहाँ पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है. ठीक है, तो ज्योग्राफी में जैसे फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में हमने 11th में पढ़ा फिजिकल ज्योग्राफी, 12th में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी. तो ह्यूमन ज्योग्राफी के भी सब फील्ड्स होते हैं. जैसे यहाँ पे मेन फील्ड्स है, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में सोशल ज्योग्राफी आ गया, अर्बन ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ गया. ओके, वैसे ही उसके होते हैं खुद के सब फील्ड्स ह्यूमन ज्योग्राफी के, तो उसके सब फील्ड्स है. और फिर इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छी तरह टेबल बनाकर दिया गया है, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल. तो उसमें आएगा पहला सोशल साइंसेस, जो सोशियोलॉजी जो आप पढ़ते हैं, सोशल साइंस, उसमें भी कुछ इंटरलिंक्स होते ही है ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ. बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर जिसको आप अवकाश का भूगोल हिंदी में बोलते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी. और उसके ही इंटरफेस है या फिर उसका इंटरफेस सिस्टर डिसिप्लिन्स के साथ कैसा है. सिस्टर डिसिप्लिन्स मतलब कि ज्योग्राफी की ही तरह ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो उसके साथ रिलेट करता है या उसके साथ कोई रिलेशन रखता है. तो बिहेवियरल ज्योग्राफी लाइक इट इज समवॉट ऑफ साइकोलॉजी. ओके, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशल वेलबींग के बारे में पढ़ेंगे. लीजर सोशियोलॉजी में आ जाता है. ओके, कल्चरल आपको एंथ्रोपोलॉजी दे देता है. जेंडर ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज. ओके, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मेडिकल ज्योग्राफी, एपिडेमोलॉजी. सही, उसी तरह यहाँ पे अर्बन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं. अर्बन ज्योग्राफी का कोई स्पेसिफिक सबफील्ड नहीं है, लेकिन उसका सिस्टर डिसिप्लिन आप बता सकते हो, अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग नाम से सब्जेक्ट आता है. ओके, तो वो एकदम सही से यहाँ रिलेट करता है अर्बन ज्योग्राफी के साथ. नाउ द लास्ट वन इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी. पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कोई सबफील्ड नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस से वो मैच करता है. Then electoral geography and military geography, which comes with the psephology and the military science. In the last three one, the first one is population geography, then the settlement geography and the economic geography. In the population geography, there is no such subfield. Same with the settlement geography. लेकिन उसके social sciences में different interface है दूसरे subjects के साथ. जैसे population geography आप demography में पढ़ते हैं, और urban और rural planning में आप पढ़ते हैं settlement geography के बारे में. इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, पहले तो उसमें इकोनॉमिक्स ही एक मेन सब्जेक्ट ही आ जाता है. ओके, इकोनॉमिक्स इज ऑल रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी उसमें आ जाता है, लाइक पॉपुलेशन, सेंसस वगैरह. ऑलराइट, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल साइंसेस उसमें अलग है. ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज है तो उसमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है. ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस स्टडीज एंड कॉमर्स, कॉमर्स एक पूरा स्ट्रीम ही आपका 11 से आ जाता है, जो अब आई गेस नहीं होगा, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है तब से. ओके, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म है तो टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट उसमें अलग से सब्जेक्ट होगा. ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है तो उसमें इंटरनेशनल ट्रेड अलग से होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. उसका किस तरह से इंटरफेस है सिस्टर डिसिप्लिन्स के साथ सोशल साइंसेस के, और सब फील्ड्स क्या क्या है उस ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक के. तो ये सब हमने डिस्कस किया ये पूरे ही पार्ट में. वी डिस्कस्ड अबाउट द ब्रॉड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, किस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप हुआ है, और वी हैव डिस्कस्ड the concepts of possibilism and environmental determinism along with neodeterminism. So this was all about the chapter called human geography, nature and scope. I hope you like this video. If you like this video, please make sure you like it. You comment it down. If you have any queries or doubts, okay, you can give me your feedback. How do you like my video? Okay, and please subscribe my channel so that you can get all the notifications of my upcoming new videos. I'll soon come with the class 12th new video of next chapter.
Till that, stay tuned, stay safe, stay happy. Thank you very much.